যাত্রার সূচনায় রবিবার কোচবিহারে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন। এই কর্মসূচিতে যোগ দিতে কোচবিহারে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য। জানা গেছে দুপুর 2টো নাগাদ হেলিকপ্টারে কোচবিহার বিমানবন্দরে নামেন নিতিন নবীন। এরপর সড়কপথে কোচবিহার শহরের রাসমেলা মাঠে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রার সভা মঞ্চে আসেন তিনি। রবিবার সকাল থেকেই জেলা জুড়ে বিজেপি কর্মীরা এই সভায় যোগ দেন। জানা গেছে একটি গাড়িকে পরিবর্তন যাত্রার রথের মতো সাজানো হয়েছে। এই যাত্রারই সূচনা করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন। এরপর 5ই মার্চ কোচবিহার থেকে রওনা হবে বিজেপির এই রথ। কোচবিহারের 7টি বিধানসভা কেন্দ্র ঘুরে এই রথটি আলিপুরদুয়ার জেলার থেকে রওনা হবে 6ই মার্চ। কোচবিহারে আসছেন নিতিন নবীন। বিজেপির পরিবর্তন যাত্রার সূচনা করবেন নিতিন নবীন। দুপুর 2টো নাগাদ হেলিকপ্টারে কোচবিহারে আসেন নিতিন নবীন। এই মুহূর্তে আমরা কোচবিহারে জনসভা থেকে সরাসরি নজর রাখবো। প্রতিনিধি প্রবীর কুণ্ডু আমাদের সঙ্গে যুক্ত। প্রবীর, সামনে নির্বাচন, আর নির্বাচনের আগে আজ কোচবিহারে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন এবং এই মুহূর্তে যে ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি একেবারে সকলের মধ্যে উন্মাদনা। কি জানতে পারছো এই মুহূর্তে, কি আপডেট দেবে আমাদের? দেখো, এই মুহূর্তে নিতিন নবীন তিনি মঞ্চে বক্তব্য রাখছেন এবং কোচবিহারের রাসমেলা মাঠে ইতিমধ্যেই যে ভিড় কর্মীদের সেটা তোমাকে দেখাচ্ছি। দেখো, এইখানে যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি এখানে কিন্তু মহিলা কর্মীদের বসার জায়গা করা হয়েছে এবং মহিলা কর্মীরা এখানে বসেছেন এবং নিতিন নবীন তিনি এই মুহূর্তে মঞ্চে বক্তব্য রাখতেও শুরু করেছেন। তিনি ইতিমধ্যেই কোচবিহারে এসে পৌঁছেছেন এবং তিনি নিতিন নবীন ছাড়াও বিজেপির যারা শীর্ষ নেতৃত্বরা রয়েছেন, শ্রমিক ভট্টাচার্য রয়েছেন, কৃষির প্রামাণিক থেকে শুরু করে মনস্তিকা থেকে শুরু করে সকল স্তরের নেতৃত্বরা রয়েছেন। মূলত এই মঞ্চ থেকেই তিনি কিন্তু তার পাশেই রয়েছে এই যে পরিবর্তন যাত্রার রথ। এবং আমি আমার ক্যামেরা পার্সন প্রবীরকে বলবো একটু সেই ছবিটা দেখানোর জন্য, যে কর্মী সমর্থকরা এখানে বসে রয়েছেন এবং তার পাশেই কিন্তু রয়েছে সেই রথ, যেই রথ কিন্তু যে রথের সূচনা করবেন নিতিন নবীন আজকের এই কর্মসূচি, এই আজকের এই মঞ্চ থেকে। এবং এরপরই কিন্তু এই রথ 5 তারিখ এবং 6 তারিখ দুদিন কোচবিহারের বিভিন্ন বিধানসভা গুলি ঘুরবে এবং তারপর আলিপুর হয়ে অন্যান্য বিধানসভার পথে রওনা হবে। এবং এই কর্মীদের মধ্যে কিন্তু নিতিন নবীনের আজকের যে তার এই সফর এবং নিতিন নবীনের আজকের যে কর্মসূচি, তার এই সভা পরিবর্তন যাত্রার এই সভাকে ঘিরে কর্মীদের মধ্যে কিন্তু যথেষ্টই উন্মাদনা রয়েছে। এবং তোমাকে দেখাচ্ছি কর্মীদের মধ্যে সেই ভিড়, উচ্ছ্বাস, যাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে মাথায় বিজেপির টুপি পরে তারা কিন্তু অপেক্ষা করছেন, তারা সবাই বক্তব্য রাখছেন, কারোর হাতে রয়েছে দলের পতাকা এবং কর্মীদের মধ্যে কিন্তু যথেষ্টই উচ্ছ্বাস, উন্মাদনা রয়েছে। কারণ বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই একটি বড় ধরনের সভা বিজেপির, যেটা কিন্তু রাজনৈতিকভাবে যথেষ্টই তাৎপর্যপূর্ণ। এবং নিতিন নবীন তিনি কিন্তু কি বার্তা দেবেন সেদিকে কিন্তু এই মুহূর্তে বিজেপি কর্মীরা সেদিকেই তাদের নজর এবং বিজেপি কর্মীরা তা শুনছেন যে বিধানসভা নির্বাচনের আগে নিচুতলায় কর্মী সমর্থকদের জন্য কি বার্তা দেবেন। দাদা একটু দেখো, কথা বলার চেষ্টা করব যারা রয়েছেন। দাদা, কি বলবেন? বক্তব্য শুনতে এসেছেন পরিবর্তন যাত্রা। গোসানিবাড়ি থেকে। কি চাইছেন আপনারা? আমরা পরিবর্তন চাইছি। ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে কি চাইছেন? পরিবর্তন চাইছি, পরিবর্তন। সভায় কর্মীদের উন্মাদনাটা কত উন্মাদনা রয়েছে? কিরকম উন্মাদনা রয়েছে কর্মীদের? খুব উৎসাহ রয়েছে। দেখো, মহিলা কর্মীরাও যারা রয়েছেন তাদের সঙ্গে একটু কথা বলার চেষ্টা করবো। দিদি, কেমন উন্মাদনা রয়েছে মহিলা কর্মীদের মধ্যে? প্রচুর উৎসাহিত রয়েছে। আমরা আজকে নিতিন নবীন যে জনসভায় এসেছি, তার অনুপ্রেরণায় আমরা আগামী দিনে গিয়ে আমরা পরিবর্তন গ্রামগঞ্জ থেকে করে আমরা মোদিজির হাতকে শক্ত করতে চাই। সেই উদ্দেশ্যে আমরা মহিলারা প্রচুর উৎসাহের সঙ্গে কাজ করছি। সবাই কি শুনছেন এবং কখন এসেছেন সবাই? আজকে মহিলাদের ভিড়টা, মহিলাদের প্রচন্ড ভিড় আছে।
তো মা বোনেরা জাগ্রত হয়ে গেছে। আজকে আমরা জনসভায় যে এসেছি পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে, আমরা আগামী দিনে পরিবর্তন চাইছি, আমাদের যুব সমাজের পরিবর্তন চাইছি, মা বোনেদের সুরক্ষা চাইছি। তার উদ্দেশ্যে আমরা এই জনসভায় এই নীতিন জমিদ্দির অনুপ্রেরণায় যা উনি যে বলবেন সেই নির্দেশে আমরা আগামী দিনে পথ চলবো। নবীন কি বক্তব্য রাখবেন তার দিকে কিন্তু তাকিয়ে রয়েছেন এবং বিধানসভা নির্বাচনের আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা, এই সভা মঞ্চ থেকে কি কি বার্তা দেবেন সেই পথ শুনে, সেই নির্দেশ শুনেই বিধানসভা নির্বাচনে জোরদার প্রচারে নামবেন বিজেপির কর্মীরা এবং বিজেপির যে 9টি বিধানসভার প্রার্থীদের জেতানোই কিন্তু এই মুহূর্তে একটা বড় লক্ষ্য। একদমই তাই এবং প্রবীর, বিধানসভা এই মুহূর্তে নির্বাচনের তুমি আগে একটা যেমনটা বড় জানাচ্ছিলে যে সভা কিন্তু নীতিন এই নবীন মুহূর্তে তিনি চলছে। কিন্তু বক্তব্য রাখছেন এই মুহূর্তে। আমরা সরাসরি সেই দৃশ্যটা শোনাই, দর্শকদেরকে দেখাই, সেই ছবিটা তুলে ধরো। কি বলছেন নীতিন নবীন? आपको नहीं सुन पाई, उनके अपमान का बदला आपने नहीं किया है, तो बंगाल की माता बहनों के अपमान का बदला बंगाल প্রবীর শোনা যাচ্ছে? আমি বলছিলাম যে এই দেখো আমি মুহূর্তে চেষ্টা করছি নীতিন নবীনের একদমই তাই, নীতিন নবীন কি বলছেন আমরা শুনবো। इस पवित्र माटी से उन घुसपैठियों को स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि आपने बंगाल में जिन घुसपैठियों का साथ दिया था, अब उन घुसपैठियों को बाहर करने का समय आ गया है। मां काली की पूजा करने के लिए हमें कोर्ट का परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन नमाज अदा करने के लिए स्वतंत्र छोड़ প্রবীর, নীতিন নবীন এই মুহূর্তে কি বলছেন আমরা শুনবো, দর্শকদের শোনাও। मित्रों, मेरे युवा साथियों, आने वाले समय में बंगाल को उस मानसिकता से मुक्ति दिलानी है जो मानसिकता तुष्टिकरण की राजनीति से प्रेरित होती है। बंगाल की जमीन को जब हम खेती के लिए मांगते हैं, जब हम कहते हैं कि हम बंगाल की सीमाओं को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो ममता दीदी के पास जमीन नहीं होता लेने के लिए और फाइल को हटाती है, लटकाती है। लेकिन यहीं पर अगर कहे कि अगर बंगाल की जमीन पर तुष्टिकरण की राजनीति के लिए जमीन देने की बात आएगी, तो ममता दीदी रेड कारपेट बिछाकर लोगों को जमीन देती है। इस बात को हमको समझना होगा। दीदी, आपने फर्जी कागजों के आधार पर देश के में घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम किया है और आप उन घुसपैठियों की लड़ाई लड़ने के लिए आधी रात में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। যেমনটা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে নীতিন নবীনের এই যেখানে জনসভা তা নিয়ে কিন্তু একেবারে কোচবিহার বাসীদের মধ্যে একটা আলাদাই উন্মাদনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এবং সকলেই কিন্তু তাকিয়ে রয়েছেন তার ভাষণের দিকে এবং আমরা দর্শকদেরকেও শোনাবো কি বলছেন নীতিন নবীন। और ये यहाँ के प्रशासन ने माना है कि आज 50 लाख शहीद लोग यहाँ पर घुसपैठी बनकर यहाँ के लोगों का हक छीनते थे। मैं पूछता हूँ कि ये 50 लाख लोग किसके नौकरी खा रहे थे? ये 50 लाख लोग किसका हक खा रहे थे? ये 50 लाख लोग इतने सालों से किसका राशन खा रहे थे? ये 50 लाख लोग यहाँ की सुरक्षा को खतरा पहुँचा, किसका सुरक्षा को खतरा पहुँचा रहे थे? ममता दीदी, क्या आपने बंगाल के लोगों को, अपनी सरकार को, उन घुसपैठियों पर भरोसा किया? बंगाल की जनता पर भरोसा किया होता तो आपको आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं आज बंगाल के लोगों से कहूंगा, जो हमारी दिल्ली का लगातार विषय रहा है कि हम घुसपैठियों को संरक्षण देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको स्पष्ट कहा है कि ये 50 लाख लोग तो घुसपैठियों को वोटर लिस्ट के नाम निरीक्षण को हो ही रहा है। आने वाले समय में ऐसे लाखों घुसपैठी और भी हैं जिनको भी चिन्हित कर यहाँ से निश्चित रूप से बंगाल की जनता के लोगों का हक छीनने नहीं देंगे। आप ही बताइए, क्या आपको लगता है कि घुसपैठियों को टीएमसी की सरकार बाहर कर सकती है? क्या आपको लगता है कि यहाँ की कांग्रेस में जो हमारे नेता बैठे हैं वो इनको बाहर कर सकते हैं? क्या कम्युनिस्ट के लोग इन घुसपैठियों को बाहर कर सकते हैं? मित्रों, इनको कोई बाहर कर सकता है तो आपकी भाजपा की सरकार ही बाहर कर सकती है। आपको आपका हक दिलाने का काम कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ही आपको हक दिला सकती है। तो आज मित्रों, इन घुसपैठियों को हमको बाहर ही नहीं करना है। एक ऐसी निर्णायक सरकार बनाना है जिस सरकार से यहाँ के लोगों को विकास के साथ जोड़ा जाए और कह सकते हैं जिस योजनाओं को यहाँ पर लागू करने में ममता दीदी लगातार सौतेला व्यवहार करती है, हम बंगाल की जनता को उसका हक दिलाते रहेंगे। इसके लिए चाहे जो भी कुर्बानी हमें देनी पड़े। हम लोगों ने देखा है कि यहाँ
चाहे वो सरकार की योजना हो, चाहे हमारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आम जनता तक पहुंचाने का जो प्रयास हो। आज बंगाल के लोगों को उसका हक छीनने का काम कोई कर रहा है, जो टीएमसी के गुंडे कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी योजना चलती है माता बहनों को लिए जीविका की योजना बिहार में चलती है। 10,000 रुपया हम लोगों ने करीब 1 करोड़ महिलाओं को दिया, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि 1 रुपया भी किसी बिचौलिए ने दिया होगा। लेकिन दीदी, आप माता बहनों तक पैसा पहुंचाती हैं और पीछे से आपके टीएमसी के गुंडे उनसे मुहब्बा वसूली करने के लिए पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा यहाँ के भाई बहन लोग अपना मकान बनाते हैं तो टीएमसी गुंडों को हफ्ता देना पड़ता है। यहाँ के लोग अगर कोई सड़क का निर्माण करता है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है, तो उसको भी टीएमसी के गुंडों का हफ्ता देना पड़ता है। ममता दीदी, आपने किस प्रकार की सरकार बनाई है? आप किस कहती हैं कि हमारी सरकार में करप्शन नहीं है, तो मैं पूछता हूँ शिक्षक भर्ती घोटाला क्या है? एसएससी घोटाला क्या है? नगर पालिका नगर निगम में भर्ती घोटाला क्या है? राशन घोटाला क्या है? और दीदी, आपके आधा दर्जन मंत्री अगर जेल गए हैं तो कौन से तीर्थ यात्रा में गए हैं? उन्होंने कौन सा कारनामा किया था कि आज आपकी सरकार के मंत्री जेल जाने के लिए मजबूर होते हैं? दीदी, आपने भ्रष्टाचार, भतीजे की दादागिरी और पुलिस का जो दुरुपयोग का नया इंडस्ट्री खोला है, उस इंडस्ट्री को बंगाल की जनता, बंगाल के लोग भी समाप्त करेंगे और वो समय आ गया है। तो दीदी के राज में कार्रवाई तो होती है, पर क्या चीज के लिए? टीएमसी के गुंडों को बचाने के लिए, घुसपैठियों को बचाने के लिए, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए। दीदी, क्या यही सोनार बंगाल बनाने का सपना आपने दिखाया था, जिसमें केवल भ्रष्टाचार होगा, अराजकता होगी, यहाँ के लोगों का शोषण होगा? अब बंगाल का युवा बहुत परेशान हो चुका है। बंगाल के युवाओं को जो आईटी हब देखना था, वो आज कहीं न कहीं अड्डे की दादागिरी देख रहा है। जो घोटालों का केंद्र जहां पर विकास होना था, वो घोटालों का हब बनकर बैठा है। आज हम अपने इन चीजों का हिसाब लेने के लिए ये परिवर्तन यात्रा निकल रही है। मित्रों, यही वो भूमि है जहां पर वंदे मातरम के गान से पूरा देश आजाद हुआ, और यही वंदे मातरम आज 150वीं वर्षगांठ जब हम मनाते हैं, तो टीएमसी के सांसद संसद में उसको रोकते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि जिस वंदे मातरम ने पूरे देश को आजाद कराया, उसी वंदे मातरम का अपमान टीएमसी के सांसद यहीं के बंगाल के सांसद अपमानित करते हैं। तो ममता दीदी, उस वंदे मातरम ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी दिलाई थी, अब वंदे मातरम की वही गूंज पूरे बंगाल को आजाद करेगी, पूरी तरह से आपकी अराजकता को पूरी तरह से मुक्त सरकार बनाएगी। हम आज इस ममता दीदी आपको चुनौती देते हैं। बंगाल की जनता ने जब आंदोलन को अपने हाथ में ले लिया है, उसने परिवर्तन लाया है और उस परिवर्तन की शंखनाद आज होने जा रही है। हम आज आपके साथ जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बंगाल के विकास के प्रति लगातार चिंतित रहते हैं, वो हमेशा मानते हैं कि हमें बंगाल के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करना है। 15 वर्षों तक जिस बंगाल को पहले कम्युनिस्टों ने, अभी ममता दीदी और उसके पहले कम्युनिस्टों ने जिस प्रकार से शोषण किया, अब उस बंगाल को विकसित बंगाल बनाने का और 2047 के विकसित भारत का अगर सपना प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा है, तो उसमें विकसित बंगाल कैसे बने, इसके लिए हम सब को आज कमर कसनी है। मित्रों, आज पूरे देश में जहां पर बड़े बड़े ट्रेड डील हो रहे हैं, हर युवाओं को रोजगार के लिए अवसर मिल रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के माध्यम से नए अवसर निकल रहे हैं, वहीं इस बंगाल में लोग अपहरण, उद्योग और जंगल राज के प्रचारक बनकर उभर रहे हैं। आज दीदी, आपको समर्थन किसका मिलता है? तो देश भर के जितने भ्रष्टाचार की दादागिरी को बंद करना है। और कह सकते हैं, जिस हफ्ता वसूली को लेकर आज अपने सरकार को आप चला रहे हैं, हम उसको उखाड़ फेंकेंगे।
साथ ही साथ विकसित भारत का सपना, विकसित बंगाल का जो सपना हमारे नेताओं ने देखा है, अब हम अपने बंगाल में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे और विकास के इस रथ को आगे बढ़ाएंगे। और हम अपने बंगाल को बचाने के लिए चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हम देने को तैयार हैं। मित्रों, अगले कुछ ही दिन बाद होली आ रही है। एक होली हम लोग 4 तारीख को मनाएंगे और दूसरी होली बंगाल के जीत के साथ मनाएंगे, भगवा होली मनाएंगे। उस दिन के लिए अपने आप को संकल्पित करिए मित्रों। साथ ही साथ मैं बंगाल के सभी सम्मानित नागरिकों से अपील करता हूं कि आइए इस भ्रष्टाचारी को, तृणमूल की सरकार को, इस गुंडा राज वाली सरकार को बदलने का समय आ गया है। तो पलटानो दरकार, पलटानो दरकार। तो आज इस आह्वान के साथ और मैं कहूंगा, दीदी घुसपैठियों के प्रति आपको ममता है, बंगाल के प्रति लोगों के प्रति नफरत है, तो दीदी छोड़ देना, छोड़ देना। बंगाल की जनता आपके इस व्यवहार को अब चलने नहीं देगी। हम निश्चित रूप से परिवर्तन लेके आएंगे। उसके लिए भाजपा कार्यकर्ता और बंगाल की जनता हर कुर्बानी देने को तैयार है। और हम आपसे आह्वान करते हैं कि चलिए भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सुशासन वाली सरकार बनाएंगे, जहां युवाओं को रोजगार होगा, महिलाओं की सुरक्षा होगी, किसानों का सम्मान होगा और व्यवसायियों को नया अवसर मिलेगा। तो आइए इस कूच बिहार से निकलने वाली इस परिवर्तन यात्रा का शंखनाद करें। और मैं कहूंगा, मेरे कूच बिहार के मिट्टी के लोगों, इस मिट्टी को तिलक कर लेना, इस परिवर्तन की लहर को मजबूत कर देना और इस तिलक करके पूरे बंगाल में इस परिवर्तन की लहर को आगे लेके जाना है। मैं अपने तमाम कार्यकर्ता भाइयों नेताओं से कहूंगा, बंगाल को नरेंद्र मोदी पूरी तरह से सुरक्षित रखेंगे, विकसित रखेंगे और बंगाल के लोगों को उसका हक दिला के रहेंगे और घुसपैठियों को बाहर करके रहेंगे। इस बात का संकल्प करते हैं। तो मैं अपने बंगाल के लोगों को फिर से अभिनंदन करता हूं। जय मां काली, जय मां भारती। एक बार जोरदार जय घोष करेंगे, वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। ধন্যবাদ মাননীয় সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন মহাশয়কে। এখন তিনি প্রদীপ প্রজ্বলন করে এবং ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা নেড়ে আমাদের এই যাত্রার শুভ সূচনা করবেন। আমি সম্মানীয় অতিথিবৃন্দকে অনুরোধ করছি, মাননীয় নীতিন নবীন মহাশয় এবং আমাদের সভাপতি শ্রী শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয় তারা এই প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে শুভ সূচনা করবেন।